Okay, beta. Can you see the screen? Yes. Yes, Screen ma'am. is, yeah. Okay, beta. So see what we were doing yesterday. We had this system of equations ax is equal to b, right? So we had this system of equation ax is equal to b, and we wanted to solve this system. And I told you that what we will do, we will use three row operations. What were the three row operations allowed? One was interchange two rows. Second was you can multiply any row with a non-zero scalar. Third was you can add to any row a scalar multiple of some other row. So these are the three row operations which you can use. So we were saying that we will use these three row operations and we will convert A into a better matrix so that it is easy to find out the solution. है ना बेटा? जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल किया था जिसमें यू हैड समथिंग लाइक दिस, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ था, ये आपका ए है, ये बी है, तो आपने रो ऑपरेशंस यूज करके so you will convert this left hand side matrix into something here, say मैं नाम A B C D E F, यहाँ पे 0 बना लो, है ना, और यहाँ पे G H I कुछ भी आ जाएंगे नंबर्स, तो इट इज इजी टू सॉल्व दिस सिस्टम, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम से इस सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे वाया द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस, और जो फाइनल सिस्टम आपके पास बना है इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट इक्वेशन में देयर इज ओनली वन वेरिएबल, that is the third variable z, fz is equal to I, you can find z, and then from the second equation, second last equation, you can find your y, and then from the first equation you can find your x. Is that okay beta? ये हमारा कल का काम था, किसी को डाउट बेटा इसमें? No, ma'am. So now I am saying that you will convert A into a better form, right? So यहाँ पे better form का क्या मतलब था कि हमने इसको upper triangular matrix में convert कर दिया था, अपने matrix A को you have converted into an upper triangular matrix. Now today we will be talking about another better form of A. So that is called row reduced echelon form of A. So another better form of A is something called row reduced echelon form. So बोलते हैं RREF. Okay. So today we will be talking about what is a row reduced echelon form, and then later on we will see how it is helpful to us in solving a system of linear equations. So first of all, I will write down the definition of row reduced echelon form. Complete definition I will write down, then I will make you understand each point. Okay, so let me write down. So what is row reduced echelon form of a matrix? I will write a matrix A is said to be in row reduced echelon form. It's said to be in row reduced echelon form if it satisfies the following criteria. If it satisfies the following criteria. And what is the criteria? The first one is first non-zero entry in each row is 1. First non-zero entry in each row is 1. Second point is if a column contains the first non-zero entry of any row, the first non-zero entry of any row then entry
then every other entry in that column is 0. Then every other entry in that column is 0. Next point is the zero rows. The 0 rows that is rows containing only zeros. 0 rows means इसमें सब 0 हो. Occur below all the non-zero rows. Occur below all the non-zero rows. And the last point is, let there be R non-zero rows. Let there be R non-zero rows if the first non-zero entry of the ith row, if the first non-zero entry of the ith row occurs in ki column, then we should have k1 less than k2 less than k3 and so on less than kr. Okay, so I will explain each point now. So you are given a matrix A. So what I am saying here is, जैसे अगर आपके पास एक matrix दिया हो, I am giving you this matrix 1 2 3 3 2 2 2 1. Ma'am, Yes. can you please scroll down? What do Okay, you mention? okay, I will give you time. Just a minute. पहले मुझे समझाने दीजिए बेटा, लिखने का time दूंगी मैं. ठीक. So what I am saying is, suppose this matrix A is given. If I ask you, is it an upper triangular matrix? Yes or no? Yes, ma'am. Is it an upper triangular matrix? Yes, because you know how to check for upper triangular. Upper triangular के लिए कैसे check करते हो कि diagonal के नीचे वाली सारी entries 0 होने चाहिए. Now the same thing I am telling here कि given a matrix A, how do you check that that matrix is in row reduced echelon form? So there are 4 points to be checked. So the first point is, the first non-zero entry in each row is 1. So for example, if I give you this one, I'll write a matrix here. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1. एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1. ओके, एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2. फाइन. नाउ लुक एट द फर्स्ट मैट्रिक्स. ये क्या कह रहा है? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1. ये देखो, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है इस रो की? 1. इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है? 1. इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है? 1. So this point is satisfied by this matrix. And look at this matrix. What is the first non-zero entry of this row? 1. What is the first non-zero entry of this row? 1. What is the first non-zero entry of this row? 1. So this point is again satisfied by this matrix. Now look at the third matrix. First non-zero entry of the first row is 1. First non-zero entry of the second row is 1. First non-zero entry of the third row is 2. So this point is not satisfied by this matrix. पहला point clear है कि नहीं? So we want that all the entries which are first non-zero entries in each row, they are to be 1. किसी को doubt first point में बेटा? No, ma'am. Okay. Now look at the second point. Shall we move ahead to the second point? Okay. So the second point says, if a column contains first non-zero entry of any row, then every other entry in that column is 0. इसका क्या मतलब है बेटा? ये देखिए. Now look at this. 1 0 0 0 0 1 2 3. Just a minute.
0 0 2, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 3, ओके 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay, look at this matrix. Here we are saying if any column contains first non-zero entry of any row. अब देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है फर्स्ट रो की, ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है सेकंड रो की, ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है थर्ड रो की. ओके, तो ये वाली जो एंट्री है वो फर्स्ट कॉलम में है, ये वाली जो एंट्री है वो सेकंड कॉलम में है, ये वाली जो एंट्री है वो थर्ड कॉलम में है. कह रहा है कि उस कॉलम में बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए. देखो बाकी सारी एंट्री जीरो है ना, सो दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइड. इस कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस वाले कॉलम में कोई भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है. नाउ इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस 1 0 0 0, okay, then you have 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0. now is this point satisfied by this matrix? अब इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री पड़ी है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, और उस कॉलम में एक और नॉन जीरो एंट्री पड़ी है. तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस पॉइंट. इज दिस थिंग क्लियर बेटा? थोड़ा सा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, बट मैम एक बार Yes. बी पॉइंट फिर से बता दो. ओके बेटा, सो बी पॉइंट सेज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा, और मान लो ऐसा मैट्रिक्स है. इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है बेटा बताइए? पहले ये बताओ इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है? 1 है ना. 1 अब लुक एट दिस मैट्रिक्स, दिस रो, व्हाट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री? 1 है ना. सो वी आर सेइंग कि जिस कॉलम में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है एक यहाँ पड़ी है, और किसी कॉलम में नहीं पड़ी ना फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज. सो द कॉलम्स व्हिच आर कंटेनिंग फर्स्ट मैम एक फोर्थ उसमें भी तो है, फोर्थ कॉलम में. फोर्थ कॉलम में कहाँ है? मैम फर्स्ट 3 नहीं है. अरे बेटा वो 3 कहाँ है? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो. इसमें सिर्फ 3 रोज हैं और उसमें से एक रो पूरी जीरो है. 3 इज द थर्ड एंट्री, थर्ड नॉन जीरो एंट्री. फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आई एम सेइंग ऑफ अ रो. ओके मैम. ठीक है, ये दोबारा देखिए. देखो इस रो की 3 रोज है ना, तो 3 आपकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज होंगी रो की. तो इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है? 1. इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है? 1. इसके अलावा और कोई आपकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री नहीं है. 3 is not the first non zero entry of any row. ठीक है, so there are only these 2 columns. One is this one and one is this one, which are containing the first non zero entries. So we are saying उन कॉलम्स में बाकी सब कुछ जीरो होना चाहिए. तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. क्यों? क्योंकि इस कॉलम में इसके अलावा सब कुछ जीरो होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये 2 पड़ा है. ठीक है, और अगर इसकी जगह पे मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स होता, मान लो 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0. अब देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है? 1. सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन है? 1. ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे मुझे 0. अब देखिए, अब इस कॉलम में इसके अलावा कोई भी और नॉन जीरो नहीं है, और इस कॉलम में इसके अलावा कोई भी और नॉन जीरो नहीं है. तो ये जो है ये हमारे पॉइंट को वेरीफाई करता है. ये समझ में आया बेटा पॉइंट सबको? यस मैम. Now look at the third point. The zero rows occur below all non-zero rows. ये तो सिंपल है. ये कहता है कि आपके पास अगर ऐसा मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 0 1 0 0 0 0, ओके, और एक ऐसा है 1 2 3 0 0 0 0 1 0. ओके, इसमें देखिए पहला पॉइंट सेटिस्फाई होता है, पहले बताइए. चलो पहले सी देखते हैं. सी क्या कहता है कि जो जीरो रोज है वो नीचे पड़ी होनी चाहिए, बीच में नहीं पड़ी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करता है, ये नहीं करता. ठीक है, अब इसमें आप मुझे बता सकते हैं इस मैट्रिक्स में पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है? फर्स्ट हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा.
हाँ, फर्स्ट हो रहा है कि एवरी नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ ईच रो इज 1. सेकेंड पॉइंट वाज कि जिस भी कॉलम में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज पड़ी हैं उसमें बाकी सब कुछ जीरो होना चाहिए, वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है, नाउ लुक एट द, ये 3 पॉइंट्स में बेटा पहले लिख लो 3 पॉइंट्स, और अगर डाउट है तो पूछ लो, देन आई विल गो टू द फोर्थ पॉइंट. Please read carefully the first 3 points and write it down. And if you have doubts in first 3 points, then please ask. चले बेटा आगे. Understood? Now look at the fourth point. Fourth point क्या है कि let there be r non-zero rows, and if the first non-zero entry in the ith row occurs in kith column, then we should have k1 less than k2 less than kr. इसका क्या मतलब है? Okay, so I'll give you example. So look at this matrix: 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1. यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किसमें है? C1 में, है ना. फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किसमें है? C1 में. सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किस कॉलम में है? C2 में. और थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन से कॉलम में है? फोर्थ कॉलम में, C4 में. So we actually wanted that this one should be less than, like, and let us look at another example तो ज्यादा समझ में आएगा. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0. इसमें फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज इन द फोर्थ कॉलम, and third row की first non-zero entry is in the second column. So here you don't have 1 less than 4 less than 2, not true. और यहाँ पे आपके पास 1 less than 2 less than 4, true. So ये वाला जो मैट्रिक्स है वो पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, ये नहीं करता. अंडरस्टूड? कि जो आपकी नॉन जीरो एंट्रीज है वो ऐसे जानी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई. So you should have this slider like thing in your matrix. जरूरी नहीं है कि फर्स्ट की फर्स्ट में हो, सेकंड की सेकंड में हो, थर्ड की थर्ड में. नो, फर्स्ट की फर्स्ट में हो तो सेकंड की फर्स्ट को छोड़ के कहीं भी हो सकती है, और थर्ड की जहां पे सेकंड की है, सेकंड की मान लो फिफ्थ में है, सेकंड की नॉन जीरो एंट्री मान लो फिफ्थ कॉलम में है, तो जो थर्ड रो है उसकी नॉन जीरो एलिमेंट्री सिक्स्थ कॉलम से स्टार्ट होनी चाहिए कहीं भी. समझ आ गया बेटा? Clear? Now we will check some, I'll write some matrices and then you will tell me if it is in row reduced echelon form or not. ये देखिए 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. बताइए बेटा यहाँ पे इज इट इन रो रिड्यूस एशलन फॉर्म? यस नो? पहला पॉइंट देखिए बेटा, सेटिस्फाई हो रहा है. इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाइड. ओके बेटा. सेकेंड पॉइंट, that if a column contains a non-zero entry, then all other entries are to be zero. ये सारी zeros हैं. ठीक है, so second point is also satisfied. थर्ड पॉइंट देखिए,
क्या था कि जीरो रोज शुड बी एट द एंड, और यहाँ पे कोई जीरो रो है ही नहीं, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। डी पॉइंट देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन C1, सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन C2, थर्ड रो का इज इन C3। मैम तो यस बेटा, मैम वो थर्ड पॉइंट गेन था कि वो लास्ट जीरो होना चाहिए, पर फिर यहाँ तो मैम है नहीं ही नहीं, नहीं, ये तो नहीं फिर था कि लास्ट जीरोस होनी चाहिए, ऐसा नहीं था बेटा। ये था कि अगर कोई रोज जीरोस है वो नीचे होना चाहिए। मैम इफ अगर आपकी मैट्रिक्स में कोई जीरो रोज है, देखिए, इफ द जीरो रोज शुड बी एट द एंड, तो अगर कोई जीरो रो है तो वो नीचे होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हो। समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे है ही नहीं जीरो रोज, तो वी मतलब जीरो रो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जीरो रो होती तो वो नीचे होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए कि इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन C1, सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन C2, एंड थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन C3, एंड क्लियरली यू हैव 1 लेस देन 2 लेस देन 3। ठीक है, so this is in row reduced echelon form. Okay, so answer is yes. Now look at this matrix and tell me. मैम Yes beta, मैम मैम वैसे RF AF का मैम ये इक्वेशन सोल्विंग में क्या मतलब वो एप्लीकेशन बेटा है? अभी मैं वही कह रही हूँ, बाद में, अभी जस्ट लर्न अबाउट दिस थिंग, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कम टू दैट, है ना। सब कुछ मिक्स करेंगे तो समझ नहीं आएगा। ओके बेटा, ओके मैम। so I will tell you because उसकी एक लंबी थ्योरी है, so that is what we are going towards. तो पहले आप रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म सिंपल, जैसे आपको कोई डेफिनेशन समझाता है ना, वैसे समझिए, then we will use की कैसे, we'll see how we will use it. Okay बेटा, now tell me this one. Is it in row reduced echelon form? पहला नो पॉइंट मैम। हो रहा ना, तो नो। ओके, नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0, अब नो मैम। कौन मैम कौन वही सा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है? मैम फर्स्ट पॉइंट मैम, सेकंड रो में नहीं है ना 1। फर्स्ट तो हो रहा है बेटा, मैम जीरो रोज एट द every एंड। non-zero element is in every non-zero element in each row, the first non-zero element should be 1, वो तो हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए मैम मैम वो सेकंड रो में तो 1 है ही नहीं। बेटा, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच, इसमें कोई नॉन जीरो ही नहीं है, तो पूरी जीरो रो तो हो ही सकती है, इसमें ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं हो रहा है, सी वाला, कि जीरो रोज शुड बी एट द एंड, राइट, जीरो रोज शुड बी एट द एंड। तो अगर आपने ये इसको ऐसे बना लिया 1 0 0 0, यहाँ पे फर्स्ट वेरीफाई हो रहा है, बी पार्ट भी हो रहा है, सी नहीं हो रहा और डी नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो इसको मैं यहाँ ले आऊं, मैं कर सकती हूँ हम ना? बी भी नहीं हो रहा, बी भी कैसे हो रहा हाँ, है? बी भी नहीं हो रहा, सॉरी, बी भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो है, इसमें एक और नॉन जीरो पड़ा है, ठीक है, तो बी भी नहीं हो रहा। ओके बेटा, तो इसमें सिर्फ ए हो रहा है, बी सी और डी नहीं हो रहे, बट ए हो रहा है। इज दैट ओके बेटा? सो दिस इज नॉट इन रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। फाइन बेटा, इसको आप, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म? लेट अस डू दिस। आपके पास ये क्वेश्चन है, is it in row reduced echelon form? Answer is no. Then convert it. You can always convert using row reduce, जो आपको मैंने कल ऑपरेशन बताए थे। कैसे करेंगे कन्वर्ट, बताइए। सबसे पहले क्या करें, रोज जीरोस एक्सचेंज। पर, हाँ, तो यू कैन एक्सचेंज द रोज, और यू कैन जस्ट फर्स्ट मेक दिस थिंग जीरो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ये जीरो चाहिए ना, टू सेटिस्फाई बी। सो व्हाट वी कैन डू, R4 goes to R4 minus R1, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ओके बेटा, now you can interchange these two rows, R3 and R2. What you will get,
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Now you see all the four properties are satisfied. That the first non-zero entry in each row is 1. Okay, and then whatever column is containing a non-zero element of the first row, उसमें बाकी सब 0 है. Okay, and 0 rows are at the end, and also the first non-zero entry of the first row is in C1, first non-zero entry of the second row is in C2, and 1 is less than 2. So this is the required row reduced echelon form. So what we say that this matrix is equivalent to this matrix. इसका क्या मतलब है? ये हम मैट्रिक्स उसमें कैसे यूज करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी. So we will write row reduced echelon form of this matrix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 is this one. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay, beta? Clear? Now I'll give you simple examples today. Tell me, similar question. So you have 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Is it in row reduced echelon form? If not, convert it. बताइए बेटा. Is it in row reduced echelon form? Yes, ma'am. ध्यान से. Yes. Okay. Now I'll just change one entry. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1. Is it in row reduced echelon form? No, ma'am. No. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला 1 पड़ा है ना. ये गड़बड़ कर रहा है ना. Because Yes, ma'am. in the third row the non-zero element is here. So you want all other entries in the third column to be 0. So can you convert it into row reduced echelon form? So what you will do to convert, what operation you will use, beta? इसको 0 बनाना है ना. To make it 0, what you can do? You can do Subtract R1. it, R1 R1 goes minus to R3. R1 minus R3. So what you will get? 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Now is it in row reduced echelon form? Yes, this is row reduced echelon form, na? So this matrix 1 here. 0 0 minus 1. Sorry, minus 1. Okay, so this is in the row reduced echelon form. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. All we care about is the first elements. They should be 1. Okay, everybody, do this one, beta. You have to tell me 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2. You have to tell me, is it in row reduced echelon form? If not, convert it. बताओ बेटा. No, ma'am. नो. हाँ, क्या क्या इसमें दिक्कत है बेटा? हमें 2 वाली दिक्कत है. We हाँ, first इसमें entered 2 1 वाली है. दिक्कत है. और एक क्या है? इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज इन C1, इसका C3, C1 C3, इसका C2 में और इसका C4 में. ये भी दिक्कत है. तो सबसे पहले इसको हम 1 बना देते हैं. तो उसके लिए क्या करें? How you can make this 1? R4 minus R1. बेटा अगर R4 minus R1 करोगे तो यहाँ पे एक -1 आ जाएगा. यहाँ पे -1 आ जाएगा. Yes, ma'am. हाईलाइट हो जाएगा. मैम R4 डिवाइड बाय 2. यस बेटा. Yes. R4 डिवाइड. तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एक चीज कर दी दूसरी खराब होगी. So R4 goes to R4 by 2. So what you will get? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1. ये समझ में आ गया? अब हमारी सिर्फ ये वाली दिक्कत बची है कि ऐसे जाना चाहिए था हमें
और ये बीच में इधर आ रहा है, तो इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर दें R2 एंड R3, तो व्हाट वी विल गेट 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Now is it in row reduced echelon form? Yes or no? हाँ, है ना, अभी भी दिक्कत है ना बेटा? yes, हाँ। क्या दिक्कत है? हम ये ऊपर का वाला मान 1 लो ना, तो फिर क्या yes, हाँ, करें? R1 goes R1 to minus R1 R4 minus R4. So what you'll get? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, sorry, 1 0 and 0 0 0 1. So this is it, your row reduced echelon form. बेटा यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट? Next we have to connect it with something called rank of a matrix, but वो मैं आज नहीं शुरू करूंगी, मैं आज आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ दो, सब लोग अब मुझे कन्वर्ट करके बताएंगे रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में. Convert the following matrix into row reduced echelon form. Convert it into row reduced echelon form. चलो पहले ये करते हैं. कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? Obviously this is not in row reduced echelon form, है ना? You can see it. So try everybody. I'm giving you 2 minutes. क्या करोगे बेटा? सबसे पहले इसको और इसको 0 बनाइए. First step should be you will make all the entries in the first column except this one 0. बनाइए इसको. So you will do R3 goes to R3 minus 3 times R1 and R2 goes to R2 minus 3 times R1. So what you'll get? You'll get 1 minus 1 1 0 2 minus 1 0 4 minus 2. अब क्या करेंगे बेटा? Next step is R3 divide by 2. उसकी जरूरत नहीं है बेटा, मतलब कर लो, कोई गलती भी नहीं है, बट जरूरत नहीं है. सिंपली आप इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो बाद में भी आपको करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर चॉइस, you can kill this element or you can make it 1. So that is your choice. So R3 goes to R3 minus 2 times R2. Okay बेटा? So अगर आप 2 से डिवाइड भी कर रहे हो ना, R3 goes to R3 by 2. That is also okay, but you are just adding one more step. Okay बेटा? So 1 minus 1 1 0 2 minus 1 0 0 0. Okay ना? Now अभी क्या चाहिए हमें? रो रिड्यूस एक्शन फॉर्म के लिए और क्या चाहिए बेटा? ये वाली चीज 1 होनी चाहिए ना? yes, ma'am, First divided non-zero by 2 element of each row should be 1. So you will do R2 goes to R2 by 2. So you'll get 1 minus 1 1 0 1 minus 1 by 2. Is it in our row reduced echelon form now? अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये minus वाला 1 element, हाँ, इसको भी 0 बनाना ना बेटा. So whichever column is containing the first non-zero element, all other elements should be 0. So you want to make it 0. वो कैसे बनेगा? R1 goes to R1 plus R2.
So that will give you 0, 1, 0, 1 by 2, 1 minus half, 1 by 2. 0, 1 minus half, 0, 0, 0. So this is row reduced echelon form. Better, okay? And note one thing, कुछ students ना confuse करते हैं कि row reduced echelon form is same as identity matrix, but it is not. Okay, so you should note that. यहाँ पे देखिए, this is row reduced echelon form, but this is not the identity matrix. ठीक है, every identity matrix is in row reduced echelon form, but उल्टा नहीं है. किसी को डाउट बेटा row reduced echelon form में? Okay, so I'll give you one question which you will do. Convert it into row reduced echelon form. 1, 2, minus 1, 0, minus 1, 3, 0, minus 4, 2, 1, 3, minus 2, 1, 1, 1, minus 1. Convert it into row reduced echelon form. करो बेटा 5 minutes का करके फटाफट आंसर बताओ मुझे सब. Tell me the answer. कि row reduced echelon form क्या है इस मैट्रिक्स की. First of all, you will make these entries 0. Okay, beta? So for that, what you will do R2 goes to R2 plus R1, R3 goes to R3 minus 2 times R1, and R4 goes to R4 minus R1. So you'll get 1, 2, minus 1, 0, 0, 5, minus 1, minus 4, 0, minus 3, 5, minus 2, 0, minus 1, 2, minus 1. Then you will go, अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब ऐसे भी चला सकती हूँ मैं काम, बट उससे क्या होगा अगर आप ऐसे चलाओगे तो आपको फ्रैक्शंस में आ जाएंगी ना चीजें बेटा. कैन यू सी? अगर आप इससे इसको 0 बनाने की कोशिश करोगे इसको, तो फ्रैक्शन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, विच यू कैन डू, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों रोज को एक्सचेंज कर रही हूँ. 1 आ जाएगा वहां पे. सो R2 इंटरचेंज विद R4. अगर कहीं भी 1 ना होता तो मैं फ्रैक्शंस में जाती फिर. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, minus 1, 0, 0, minus 1, 2, minus 1, 0, minus 3, 5, minus 2, 0, 5, minus 1, minus 4. Understood? This step is understood, beta? Now I will make this and this 0. उसके लिए मैं क्या करूँ? R3 goes to R3 minus 3 times R2, and R4 goes to R4 plus 5 times R2. So you see what you get is 1, 2, minus 1, 0, 0, minus 1, 2, minus 1, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0, 9, minus 9. Now I will make this 0. उसके लिए मैं क्या करूँ? R4 goes to R4 plus 9 times R3. So you'll get 1, 2, minus 1, 0, 0, minus 1, 2, minus 1, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0, 0. Here also you'll get a 0. Now अभी हमें क्या इसमें प्रॉब्लम है बेटा? किस किस को 0 बनाना है आपने? पहले तो इनको 1 बनाइए, ठीक है?
सो आप क्या करोगे, R3 R2 goes to R2 into -1 and R3 goes to R3 into -1. So you'll get 1 2 -1 0 0 1 -2 1 0 0 1 -1 0 0 0 0. Okay, now you want to make these elements 0, है ना, इनको 0 बनाना है आप तीनों को, right? So for that what you will do, R1 goes to, इसको 0 कैसे बना सकते हो आप, R1 goes to R1 plus R3, इसमें ये जोड़ दो, है ना, R1 goes to R1 plus R3, और इसको 0 बनाने के लिए you will do R2 goes to R2 plus 2 times R3. So what you'll get 1 2 0 0 0 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -1, क्योंकि +2 times R2 R3 कर रहे हो, 0 0 1 -1 0 0 0 0. Now you want to make this 0, उसके लिए आप क्या करोगे, R2 goes to R2 R1 goes to R1 minus 2 times R2. So you'll get 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0. This is the required row reduced echelon form. क्लियर बेटा, ये चीजें समझ में आ रही है ना सबको? अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप पहले इसको 0 बनाओगे, so that also you can do, right? क्योंकि इसको यूज करके आप इसको भी 0 बना सकते हो. So this is not that unique way is there. So it's your choice. आप कहीं पे इसको जैसे मैंने अभी पहले इनको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो. तो ये नहीं है कि यही स्टेप्स फॉलो करने हैं. So at the end you should reach here, and with practice you will understand कि कौन से स्टेप्स आपको पहले करने चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे जो इंटरचेंज किया है, मैं 1 को यहाँ लेके आई हूँ, ठीक है, उससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई. ऑल्दो अगर आप ऐसे भी चलोगे तो आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको हर जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा. फाइन बेटा, so we will continue from here next week. Okay, everybody take care and be safe. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. Okay, thank you everybody. Thank you, ma'am. Okay.